I'll try to draw grid kind of a structure that will help me make my deductions a little bit clear. Let me reduce the video palette. So what I will do is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, there is math, there is English, and then there is reasoning. Now let us try to make some space. Now just see how I will, do the situation. This is something that I will do in an exam condition also. Okay, and I hope this is visible and this is understandable. The very first thing that happens, that comes to my mind, I never read the conditions in order. Basically, I will never read option number 1 and then I'll read question number 2. Sorry, condition number 1, condition number 2, and then I'll go from one condition to. So the only thing that I do in an exam is that I try to fill up the conditions which are plug in the very first time that I'm filling my table. The next thing that I will do is what I will consider doing in any test, or what I will ask you guys to also sort of consider in your tests, is that try to make sure that the condition that makes sense to you gets jotted down the first. So for me, the only condition that makes sense right now is that the Thursday wala thing, right? Thursday all of them studied all of this thing, and then there is also something which is the continuity. During a period of 6 continuous days, this business of math on the first day, English on the second day, reasoning on the third day, math on the fourth day, reasoning on the fifth day, and English on the sixth day happened. So this is for a period of 6 consecutive days. So what I can straight away say that the 7th day is my rest period. Now the idea is but sir, you can ask, but sir, what is that 7th day? Is it a Sunday? Is it a Monday? Is it a Wednesday? I don't know. I will be able to deduce that once I am able to go a little further in this set. Let's see. Okay, so what I will do is I'll just start off with this first continuity wala thing. 1 to 6, all of them are continuous. So math is first, English is second, reasoning is third, and then which one is fourth? Reasoning is third, math is fourth, this one is fourth, and reasoning is fifth, and then English is 6th. Okay, so far so good. Let me change the color so that I can make you guys visualize this a little better. Now see guys, understand the question says that in the second paragraph you can see exactly 3 times each of the 3 sections, exactly 3 times he is studying in the 7-day period, okay, in which 1 day is rest. Which day is rest? So the 7th day is rest. Which is that 7th day? I don't know, but I know this thing. Math ka there are 2 days filled up, English ka 2 days is filled up, reasoning ka 2 days is filled up. What else can I do? Now I want you to understand at this point in time the set becomes difficult. Anybody who goes into this set thinking कि अरे ये तो easy है, मतलब तो बस jot down करना, information निकल जाएंगे आगे. See, and also I will be a little bilingual because it will help me explain a little better, I think. So what I will say is, the very first thing, can I put the third English session? So this is the first session of English, which is the 2nd day, okay, and in the 6th day there is a studying session for English. But can I say the 3rd session is on this particular day? If that happens, first day he is studying English, 2nd day is studying English, and then a consecutive gap of 3 days is there. There's a consecutive, and you know, they have said the gap between consecutive studying of any section out of the 3 must not be more than 2 days. What does this line tells me? कि किसी भी सेक्शन में के पढ़ने के consecutive gap 2 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता. In other words, English can never be in the first place. That makes my life so much more easier, because now I know for a fact that English can be on the 3rd day, 4th day, or the 5th day. Now let us see what I can do. Now I will go to reasoning.
forget about English because English का थोड़ा सा काम हो गया. Let's go to we will go back and forth between English and maths. So for reasoning, what I can do? Reasoning. Suppose if I put this reasoning on the second day. If I put reasoning on the second day. So second day there is, Pranav studied reasoning, third day he studied, and fifth day. Now how much gap is there? 1 day ka gap, which is sixth day ka gap, seventh day, which is anyway his gap, and day number 1 also there is a gap. So there is a 3-day gap also happening for reasoning if I put reasoning in the second column. What if I put it in the first column? If it is in the first, rather in the, this place, first day of this thing, now there is no harm. So this basically goes out. You cannot have reasoning on the second day, because if you put reasoning on the second day, all the 3 studying sessions will be there. Exactly 3 studying session will be completed, and the next studying session will be on after a gap of 3 days. So this can be only my position. This can only be my position. I hope that makes sense. आप कहीं भी और अगर प्लेस करते हो, सपोज यू प्लेस इट ओवर हेयर, मैं क्रॉस करना चाहता हूं, टिक एंड क्रॉस करना चाहता हूं, तो उस तरह से सपोज इफ आई प्लेस इट द थर्ड सेशन ओवर हेयर, आप देखो कि एक दिन का गैप, कितने गैप बन रहे हैं? 1 दिन का गैप, 2 दिन का गैप, 3 दिन का गैप, 4 दिन का गैप बन रहा है. तो दिस कैन ऑल्सो नॉट बी द पोजिशन. सिमिलरली यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन ऑल्सो, बिकॉज देन 1, 2 and 3, so 1, 2 and 3 डेज का गैप फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा. तो 6th डे पे भी रीजनिंग का पढ़ाई नहीं हो सकता है. सो फर्स्ट डे में ही रीजनिंग का पढ़ाई होगा. नाउ दिस, आफ्टर दिस, इफ यू गो टू अगेन इंग्लिश टू सी ऑन विच डे ही कैन स्टडी इंग्लिश, तो 2 डे वाला कंडीशन देखो यहां पे भी सेटिस्फाई होगा. इफ यू पुट इंग्लिश ऑन द थर्ड डे, ओके, सो इफ यू पुट इंग्लिश, सपोज यू पुट इंग्लिश ऑन दिस, okay, this day, what will happen? Second and third is there. उसके बाद कितने गैप है? 1-2 गैप है, फिर एक उसके बाद पढ़ाई कर रहा है. ठीक है, यहां पे आप डालो, मान लो एक टिक मैं ऐसे दे देता हूं, आप दिमाग में ये चीज कर रहे हो. ठीक है, आप ऑब्वियसली कॉपी भी कर सकते हो और बहुत ज्यादा स्क्रिबल करोगे. सेकेंड डे में पढ़ लिया, थर्ड डे में भी पढ़ लिया, उसके बाद 2 दिन का गैप, फिर पढ़ा, फिर 1 और 2 दिन का गैप, फिर पढ़ा. तो ये 2 कंप्लीटली चलेगा. यानी What am I saying कि ये थर्ड वाला पॉसिबिलिटी भी चलेगा. सिमिलरली जब आप फोर्थ को चेक करोगे, देखो जब आप फोर्थ में डालोगे तो 1 दिन के गैप के बाद पढ़ रहा है, फिर 1 दिन के गैप के बाद पढ़ रहा है यहां पे, फिर ये यहां पे गैप हो जाएगा, फिर वो 6th डे में पढ़ेगा इंग्लिश. ठीक है, जब हम फोर्थ डे में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं प्रणब को, तो सेकेंड में तो वो पढ़ चुका है, 1 दिन के गैप के बाद पढ़ रहा है, फिर 1 दिन के गैप के बाद यहां पढ़ाई कर रहा है. ठीक है, तो ये चल रहा है. फिर 1 दिन के गैप है, फिर 1 दिन का गैप है, 2 दिन का गैप, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर सेकंड डे को पढ़ता है, तो ये भी चलेगा. व्हाट अबाउट थर्ड? एंड सिमिलर एट्रीब्यूट विल हैपन फॉर थर्ड ऑल्सो. सो ये आपको देखना है. तो इन तीनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी है. ठीक है, आई होप यू कैन सी वेयर आई एम ट्राइंग टू टेक यू. लेट मी इंक्रीज द वीडियो अ लिटिल बिट एंड टेक इट टू दिस साइड. या, सो आई होप यू कैन, जस्ट अ सेकेंड, इसको छोटा ही रहने देता है, तो फिर आपको लगेगा मैं इधर देख रहा हूं, तो इट कैन क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ एम्बिग्युइटी. एनीवेज, या, तो सिमिलरली द पॉइंट इज कि वही फिर 6th पे भी, यहां पे आप 5th में भी डाल के चेक कर सकते हो. चलो डाल देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है. अगर मैं यहां पे डाल दूं तो 6th डे में वो पढ़ाई करता है, दैट इज कंप्लीटली फाइन. फिर 1 दिन का छुट्टी, 2 दिन का छुट्टी, फिर वो यहां पढ़ाई करता है, फिर 2 दिन का छुट्टी, फिर यहां पढ़ाई करता है. तो थर्ड यानी 5th डे इज ऑल्सो पॉसिबल. यानी कि ये जो डिडक्शंस आप कर रहे हो, इसमें थर्ड डे भी पॉसिबल है इंग्लिश पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 3 दिन पढ़ाना ही है उसको. आप समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब हम चलते हैं. तो मेरे पास एलिमिनेटिंग कंडीशन सिर्फ एक ही है, और वो है मैथ्स. अब आप देखो कि मैथ्स को आप कहां प्लेस कर सकते हो. मैथ इज ऑलरेडी इन द फर्स्ट एंड द फोर्थ. इस पोजीशन पे तो मैथ है ही नहीं. ठीक है, मैथ यहां पे आप चाहो तो डाल सकते हो. अगर आप चाहो तो यहां पे आप मैथ्स को डाल सकते हो. ठीक है, सपोज मैंने इस जगह पे मैथ्स को डाल दिया, इस जगह पे मैंने मैथ्स को डाल दिया. अब आप देखो, फर्स्ट डे पढ़ा, सेकेंड डे गैप, थर्ड डे पढ़ा, फोर्थ डे पढ़ा, फिर 1, 2, 3 दिन का गैप, और फिर पढ़ता है मंडे को. 3 दिन का गैप तो अलाउड ही नहीं है. इन अदर वर्ड्स,
ये पॉसिबल नहीं हो सकता मैथ्स के लिए। जब थर्ड चला गया तो फिर फोर्थ पे भी डाल के देखते हैं। अब अगर फोर्थ पे तो मैथ ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है, फोर्थ डे पे तो पढ़ रहा है, तो फिर हम फोर्थ पे तो डाल नहीं सकते, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो लोग थोड़े स्मार्ट हैं उन्हें दिख गया होगा आंसर कि सिक्स्थ पे रीजनिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पहले ही कट कर दिया है, ठीक है। तो दी ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस फिफ्थ वन। और फिफ्थ वन पे अगर मैथ्स पॉसिबल है और अगर इंग्लिश भी पॉसिबल है, तो क्या हम नहीं कह सकते कि ये जो फिफ्थ डे है यही थर्सडे है, और फिर ये फ्राइडे है, और ये सैटरडे है, और ये वेडनेसडे है, एंड देन दिस वन इज ट्यूसडे, दिस वन इज मंडे। अब आपको मैं बता रहा हूं कि, और ये संडे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सेट है हमने कल कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। और हम इस पॉसिबिलिटी पे अगर थोड़ा सा ध्यान देते कि अगर मैं यहां पे थर्ड डे पे मैथ्स को यहां बिठा देता, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्सडे वाला कंडीशन पूरा नहीं होता, क्योंकि मुझे एक दिन तो चाहिए जब तीनों पढ़ाई कर रहे हैं, और वो एक दिन पॉसिबल सिर्फ फिफ्थ डे पे ही है, जो कि सिक्स्थ डे पे रीजनिंग की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहां पे वो नहीं बैठ सकता, यहां पे वो नहीं बैठ सकता, यहां पे नहीं बैठ सकता, यहां पे नहीं बैठ सकता। अब आपको पूरा स्केमेटिक आपके सामने है, ठीक है। आप चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट मी टेक द रेड पेन अगेन। On which day does Pranav not study for any of the three subjects we have just seen? That is going to be Saturday. Okay, so this is going to be Saturday. Which section does Pranav study on Monday? So he basically studies, आपको obviously यहां पे मंडे को वो क्या पढ़ाई करता है, तो मंडे को देखो वो क्या पढ़ाई कर रहा है, देखो आपको दिख जाना चाहिए कि मंडे को वो सिर्फ इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। If Pranav studied for exactly 2 out of the 3 sections on a 2 out of 3 sections on a particular day, then which day it is? जब उसने 2 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी हुई है, ठीक है। If Pranav studied for exactly 2 out of the 3 sections on a particular day, देखो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाई सिर्फ वो एक ही दिन कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट डे, बिकॉज यहां पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट और रीजनिंग इज अवेलेबल, बाकी सब में वो एक एक दिन पढ़ाई कर रहा है, बाकी सब में एक एक दिन ही है, और बस थर्सडे को तीनों दिन पढ़ाई करता है। तो द आंसर टू दिस वुड बी देन विच डे इट इज, दैट इज गोइंग टू बी संडे। Okay, and the last one is, there are how many instances where Pranav planned to study the same section on 2 consecutive day? Same section, पहले तो मुझे ये चीज आपको देखना है, और 2 consecutive days, same section 2 consecutive days। तो ये मैथ्स 4th डे और 5th डे को पढ़ाई करता है, और इंग्लिश जो है वो 5th डे और 6th डे को पढ़ाई करता है, consecutive days में पढ़ाई करता है। और किसी में वैसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड कंसेक्यूटिव डेज में वो पढ़ाई होना चाहिए, या फिर 4th और 5th होना चाहिए, 5th और 6th होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ I hope that makes sense. There are how many instances where Pranav planned to study the same section for 2 consecutive? How many instances? There are 2 instances, 2 such instances. Okay, so ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ट्रस्ट मी गाइज, ये जो क्वेश्चन है इसको एग्जाम कंडीशन में आप अगर बना सक रहे हो, अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जाम कंडीशन में बना सक रहे हो, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका 90% तो आराम से पार हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन 95 पार होता है कि नहीं वो डिपेंड करता है कि आपके अलग और कितने बेटर है, क्योंकि ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि प्योर डिडक्टिव सेट था, इसमें बहुत डिडक्शंस की जरूरत है। और ये अगर 40 मिनट्स में कोई बच्चा कर पाता है, अगर आप इसी सेट को सॉल्व कर पाते हो ना 40 मिनट्स के अंदर, तो भी मैं बोलूंगा कि आप 90% में चले जाओगे कैट में। ठीक है, मेरा ये एक प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकता हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने थोड़ा सा
आराम से समझाया है, टाइम ले लेके समझाया है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा बनता है वीडियोस, कोई बात नहीं है, आप इसको 2 टाइम स्पीड पे देख सकते हो, तो 20 मिनट का वीडियो 10 मिनट में ओवर हो जाएगा। आप देख रहे हो कि समझाने का टाइम जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जल्दी समझ पाते हो या थोड़ा देर से समझते हो। सो विद दैट बीइंग सेड, आई वुड लाइक टू से थैंक यू, एंड कंपटीशन क्रुसेड से जुड़े रहिए, हमारे लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को, हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं आप, वहां पे हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। थैंक यू।